Aaron, let's see the operation of our linked list. But before jumping that to that operation, let's see what is our linked list, right? So linked list is a linear data structure, right? And it's used to store a value of list, right? And linked list looks like, let's say this is our node. Sorry, this is our node, right? A node contains two things. The first thing is value. The second thing is address of that particular node, right? So let's say this is our x, right? And this x will point to another node, right? This is my second node. It will also have some value. It will also have some address pointer. So this is our pointer which points to other node, right? And let's say this is our starting node, right? So how we could know this is our starting node, right? So if there is a pointer called head, right? So if head is pointing to a particular node, that means that is a starting of any node, right? And let's say let me make one more node, right? Let's say v comma z, right? And if somehow tail point to any node, it means that's the end of node, right? And this is head is our start of node, right? Start of node, right? So to traverse this node, you can make a temporary, right? This is our temporary, sorry, temp pointer. Using this, you can traverse whole node and get the value of each node, right? So let's see what are the basic template of creating a node, right, with a value. So first let me import some files that are include iostream using namespace, namespace std, right, int name. This is our main function. And now I'll create a class called node, right, node, right, and I will make all member variable as public since I need to access those, right? So public. So node contain two things, right? Node, let me write a colon, right? Now node contain two things, right? The first one is val and second one is pointer, right? So let me create two things into val and pointer is of data type node star. So node star and let's say that name is next, right? Now we need to create a constructor to pass the value. So constructor will be of class name that is node and I'll be using this parametric constructor. This is my wait node and this is my parametric constructor. I will be passing arguments parametric constructor, right? And I will pass one argument that is data that the data is of the data that I'm passing here will be reflected in our node by a value that is val, right? And that next is this value, right? So what I will do, I will initialize val with data and next with somehow say null, right? Right? That mean what do I mean by writing this constructor, right? I mean that this is our node. It will consist some data
and this pointer will point towards null, right? So let's see how our node look like. So first, let me create a new node, right? Node, I'm saying new node is equal to new keyword, and will pass a value that let's say 3, right? And now I need to print this value. Let me name this PTR, right? And now I need to print my node value. So PTR val and PTR dot next, right? So let's see what output we get. So yeah, 3 is our val value, and 0 is, although it looks 0, but in reality it's 0x0, right? Just address of that particular pointer, right? So yeah, this is our basic template of any node. To create a node, you will just write this code. Now let's see other operations. So the first operation is insertion, right? Insertion, right? So there can be many conditions, right? Like insert at head, insert at tail, or insert at any random position, right? So the first case is insert at start, right? So let's say uh, let's say this is our one node, this is our second node, this is our third node, right? With two things, right? And you need to insert a new node here. Let me point this. As we all know, head point to the start of any node, tail point to the end of any node, right? Let's say this is our node, right? This is our new node, but I need to insert this new node to here, right? So that it will connect to this particular node, right? Let's say this is X node, this is Y node, although Y, Z are not important for inserting at start. The first node, that is X node, is important. So what I will do, I will create a new node, right? What I will do, I will create a new node. So wait, this is my new node, right? New node, let's say M, and this is next. The first step, what I will do, I will point this new node to our existing node, that is X node, right? This is my first step. The second step would be changing head from X node to here, right? As I said, heads denote the starting of any node, right? So by doing these two stuff, you can insert any element at starting of the node. First, what I did, I've created a node. The second step was pointing that node to the existing starting node, that is head, and then changing the head of that node, right? So let's see how we can perform this. So to do so, I need to create a function, right? Let's say that is void insert at head, right? Now since I'll be changing my nodes, right? So I will pass head here by reference by head. Since I'm passing head, right? if you like कहीं भी अगर हेड पास करूँ तो पूरी नोड उधर आ जाती है, तो अगर मैं इधर हेड पास कर रहा हूँ मतलब वो पूरी नोड है का एक्सेस है मेरे पास, ठीक है? और सिंस मेरे को पूरी नोड में कुछ चेंजेस करने हैं, इसीलिए मैंने यहाँ बाय रेफरेंस पास किया है उस पर्टिकुलर नोड को, राइट? ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप वाज टू क्रिएट अ नोड, फर्स्ट स्टेप वाज टू create a node,
The second step was, let's say this is next. So this is the name A. So the second step was A का next क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, क्योंकि हेड के पास फर्स्ट नोड का एक्सेस है। तो इसका मतलब हुआ, अगर ए से मैंने नेक्स्ट हेड कर दिया, इसका मतलब ये है, ये मेरी ए नोड है, इसका नेक्स्ट मतलब ये अब मेरी स्टार्टिंग नोड से कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। और हेड अभी भी पॉइंटेड है, पर मेरे को हेड शिफ्ट करना है, मैं क्या करूंगा, हेड इक्वल टू ए, ठीक है। ए के पास, हेड के पास पूरी नोड का एक्सेस है, मतलब अब ये हेड इधर से होके इधर शिफ्ट हो चुका है, हेड, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने एक, ये मेरी एग्जिस्टिंग नोड थी, तो मैंने क्या किया, एक न्यू नोड बनाई, ठीक है। न्यू नोड बनाई तो पहले इस न्यू नोड को प्रीवियस नोड से कनेक्ट किया, ठीक है। पहला स्टेप था क्रिएट अ न्यू नोड। सेकेंड स्टेप क्या था, इस पर्टिकुलर नोड को एग्जिस्टिंग नोड से कनेक्ट करना, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या था, हेड नोड की पोजीशन चेंज कर देना, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप वाज टू क्रिएट अ नोड, लेट्स से नोड, इसको नाम दे दूं न्यू नोड, इक्वल टू न्यू नोड। अब इस नोड में कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी, राइट। तो उसमें मेरे को वैल्यू पास करनी पड़ेगी इंट वैल, राइट। और इसमें वही वैल्यू चली जाएगी जो मैं पास करूंगा, राइट। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप क्या था, नोड को, जो न्यू नोड है उसको प्रीवियस नोड से कनेक्ट करना। सो न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल टू हेड। मैं हेड क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हेड के पास कोई नोड का एक्सेस होता है, ठीक है। और अब मेरे को हेड की पोजीशन चेंज करनी थी, तो अब हेड इक्वल टू न्यू नोड, मतलब पहले जो हेड पुरानी नोड को पॉइंट कर रहा था, अब वो हेड न्यू नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। अभी मैंने नोड बना ली, ठीक है। अब मेरे को नोड डिस्प्ले भी करानी, तो डिस्प्ले कराने के लिए एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसको बोलूंगा वॉइड डिस्प्ले। इस पे मेरे को नोड पास करनी पड़ेगी, बट सिंस मेरे को अब कुछ चेंजेस करने नहीं है, तो मैं हेड को रेफरेंस पास, बाय रेफरेंस पास नहीं करूंगा, डायरेक्टली हेड पास कर दूंगा। यहाँ मेरे को पूरे नोड में चेंजेस करने थे, इसलिए मैंने हेड को बाय रेफरेंस पास किया। यहाँ मेरे को कुछ ऐसे चेंजेस करने नहीं है, तो मैं इसलिए हेड को डायरेक्टली पास कर दिया, ठीक है। लेट्स सी अब ट्रैवर्स कैसे करते हैं, ठीक है। ये स्टेप तो क्लियर हो गया, इंसर्शन, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं ट्रैवर्स, ठीक है, फिर ये सब बाद में आएंगे। अब देखते हैं ट्रैवर्स, ट्रैवर्स राइट। सो ये मेरी एक नोड हो गई, दूसरी नोड, तीसरी नोड, एंड दिस माय फोर्थ नोड, ठीक है। अब इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो ऐसे पॉइंट कर रही होंगी, ठीक है। और जो लास्ट नोड होगी वो नल को पॉइंट कर रही होगी, राइट। और ये मेरी हेड नोड है, और ये मेरी टेल नोड है, ठीक है। अब मेरे को ट्रेवल्स करना है, तो ट्रेवल्स करने के लिए मेरे को एक और पॉइंटर क्रिएट करना होगा हेड की तरह। तो मैं क्या क्या करूंगा, एक टेम्प पॉइंटर क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। फिर टेम्प पॉइंटर को हर एक नोड में भेजूंगा। अगर मेरे को इस पॉइंटर को इस नोड में भेजना है, तो क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, ठीक है। इससे टेम्प अब इधर आ चुका है, ठीक है। फिर मेरे को टेम्प इधर भेजना पड़ेगा, फिर टेम्प, फिर मैंने सीम ऑपरेशन लगाया तो टेम्प इधर है, फिर टेम्प इधर है, ठीक है। ये मैंने बताया टेम्प को कैसे हम ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। सो अब हम फिर से पीछे आते हैं। मैंने क्या बोला था कि हमने एक टेम्प क्रिएट करना है, एक टेम्प है, ठीक है। हम टेम्प को हर एक नोड पे जाएंगे और उसकी वैल्यू एक्सेस करेंगे। उसकी वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे, अगर मेरे को इस नोड की वैल्यू एक्सेस करनी, दैट इज ए, तो मैं क्या करूंगा, टेम्प डॉट वैल सी आउट टेम्प डॉट वेल, इससे मेरे इस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू मेरे पास एक्सेस हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। मैंने बता दिया हमें एक पॉइंटर क्रिएट करनी है, वैल्यू प्रिंट करने के लिए टेम्प डॉट वैल करेंगे तो इस सारे पर्टिकुलर नोड की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और टेम्प को ट्रेवर्स कहाँ तक करेंगे, टेम्प को ट्रेवर्स वहां तक करेंगे जब तक हमें नल ना मिले। जैसे हमें नल मिला, मतलब हम नोड के एंड में पहुंच चुके हैं। अब हमें और कुछ सच ट्रेवर्स नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पहले ट्रेम क्रिएट करेंगे, उसको हर एक नोड भेजेंगे। नोड में कैसे भेजेंगे, टेम्प कॉमा नेक्स्ट,
और जैसे वो हर एक नोड में जाएगा हम एक वैल्यू प्रिंट करेंगे टेम्प कॉमा वैल की, जिससे ए बी सी डी नोड जितने भी नोड है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट दैट। पहले मैंने बोला एक नया टेम्प क्रिएट करेंगे, टेम्प पॉइंटर क्रिएट करेंगे, लेट्स से दैट इज टेम्प, और इसको हेड के बराबर रख देंगे। ठीक है, क्योंकि हेड के बराबर रखेंगे सिंस हेड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नोड था। ठीक है, तो टेम्प को मैंने उसके बराबर रख दिया। अब मेरे को टेम्प को ट्रेवर्स करना है, तो मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, अगर नल हो गया तब तक इसका मतलब ये है कि हम नोड के एंड में पहुंच चुके हैं। और टेम्प को दूसरी नोड में जाने के लिए क्या मैंने ऑपरेशन बताया था, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। इससे जैसे ए बी सी नोड है, तो अगर टेम्प ए में पॉइंट कर रहा होगा तो इस ऑपरेशन के बाद वो बी, फिर फर्दर सी, फिर फर्दर डी में पॉइंट करने लगेगा। और जब वो पॉइंट करेगा तो हम उनकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए मैं लिखूंगा सी आउट टेम्प डॉट वैल। ठीक है, और मैं एक साइन लगा दूं। ठीक है, तो इससे वो इस ऑपरेशन से वो टेम्प मेरा हर एक नोड में ट्रेवर्स करेगा, और जब तक वो पर्टिकुलर जब जब वो एक पर्टिकुलर नोड में आएगा उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर वो नेक्स्ट नोड में चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। टेम्प बनाया मैंने, टेम्प अगर नल तक चला गया मतलब एंड ऑफ द पर्टिकुलर लिस्ट, तब हमें स्टॉप कर देना है लूप को। जब तक वो एंड नहीं होता, एंड तक नहीं पहुंचता, तब तक हमें उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है और टेम्प को भेजते रहना है। ठीक है, अब इसका मतलब है टेम्प लास्ट पे पहुंच चुका है, टेम्प लास्ट पे पहुंच चुका है, तो मैं सी आउट नल कर देता हूँ, ये लास्ट में नल प्रिंट कर दे टू शो इट्स एंड ऑफ लिस्ट और एंडल इधर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दो चीज समझा इधर, इंसर्ट एट स्टार्ट और दूसरा डिस्प्ले। इंसर्ट स्टार्ट में क्या करते हैं, एक नया नोड बनाते थे, उस नोड को पहले जो स्टार्टिंग ऑफ नोड है उसमें पॉइंट कराते थे और फिर हेड की पोजीशन चेंज कर देते थे। ठीक है, और द सेकेंड थिंग वॉज ट्रेवल्स करने का फंक्शन लिखना, मतलब सारी नोड की वैल्यू कैसे डिस्प्ले होंगी उसका फंक्शन लिखना। इसमें हमने क्या किया, एक टेम्प बनाया, एक टेम्प बनाया हेड के इक्वल। ठीक है, फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट नोड में भेजा यूजिंग टेम्प डॉट नेक्स्ट। जब जब वो पर्टिकुलर नोड पे गया हमने उसकी वैल्यू प्रिंट करा ली और उसको स्टॉप करा जब तक वो नल तक ना पहुंचे। ठीक है, अब अब मेरे को वैल्यू प्रिंट करानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको हटाऊंगा। ठीक है, अब मेरे को ये वैल्यू प्रिंट करानी है, दैट इज इंसर्ट एट हेड। ठीक है, अगर मैं कुछ भी वैल्यू भेजूंगा ये दो चीजें लेगा, राइट। एक नोड लेगा दैट इज हेड और दूसरी वैल्यू लेगा। तो एक नया नोड बना लेते हैं नल नाम से, नोड हेड बोल देते हैं, या एक्स बोल लो या जेड बोल लो या एबीसीडी कुछ भी बोल लो। ठीक है, इक्वल टू नल। ठीक है, इंसर्ट एट हेड, इसमें दो चीजें पास करनी है, एक हेड पास कर दूंगा और वैल्यू लेट्स से 2। ठीक है, अब इसको डिस्प्ले भी कराना है तो डिस्प्ले में भी हेड पास करना पड़ेगा, राइट। एक दो वैल्यू और डिस्प्ले करा लेता हूँ मैं, कंट्रोल सी। अब लेट्स से अब मेरे को वैल्यू 3 प्रिंट इंसर्ट करानी है। ठीक है, और एक और उसको डिस्प्ले कराना है। ठीक? तो लेट्स सी हमारा आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो तो मैंने पहला ऑपरेशन क्या लिखा था, पहला ऑपरेशन लिखा था कि इंसर्ट एट हेड। ठीक है, पहले हेड की वैल्यू नल थी। ठीक है, नल थी, उसे मैंने क्या किया, इंसर्ट एट 2 कर दिया, मतलब नल से पहले 2 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो उसको डिस्प्ले करा दिया, फिर मैंने एक और बार ये फंक्शन कॉल किया तो इस पे 3 पास कर दिया, मतलब इंसर्ट एट हेड से पहले, इंसर्ट एट स्टार्ट मतलब 3 आ गया 2 से पहले। ठीक है, ठीक है, ये मेरा था इंसर्ट एट स्टार्ट। ठीक है, अगर मेरे को कोई चीजें इंसर्ट एट एंड करनी हो तो सेकेंड स्टेप क्या है, इंसर्ट एट एंड। एंड का मतलब क्या है, टेल पॉइंटर के पास। ठीक है, तो लेट्स से ये मेरा एक कोई एरिया, सॉरी नोड है, ये मेरा दूसरा नोड है। ठीक है, और ये मेरा कोई तीसरा नोड है। ठीक है, इसमें से वैल्यू है एक्स वाई जेड, सॉरी
जेड, और ये लास्ट वाला नल को पॉइंट करेगा, राइट। ठीक है, और ये मेरा एक हेड पॉइंटर है। ठीक, मेरे को इंसर्ट एट लास्ट करनी है, तो क्या मेरे को लास्ट पोजीशन जाने के लिए कोई डायरेक्ट फंक्शन है, डायरेक्ट पॉइंटर है? नहीं है। मेरे को लास्ट में जाने के लिए मेरे को ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा। तो ट्रैवर्स करने के लिए मैंने एक बनाया टेम्प। ठीक है, टेम्प क्या करेगा, ट्रैवर्स करेगा, एक पहले इधर होगा, फिर दूसरा इधर, फिर तीसरा इधर। जब वो इधर पहुंच जाएगा, ठीक है, तब मैं इसके बाद इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, बट मेरे को टेम्प को पहले लास्ट तक पहुंचना पड़ेगा। और लास्ट नोड तक पहुंचने की कंडीशन क्या होगी, लास्ट नोड के बाद इंसर्ट करनी है, सपोज यहाँ इंसर्ट करनी है, राइट। तो मेरे को टेम्प को पहले यहाँ पहुंचाना पड़ेगा ना, फिर चेक करना पड़ेगा कहाँ तक मैं लूप चलाऊंगा। ठीक है, तो चलो इसका कोड लिख देते हैं। ठीक है, वॉइड इंसर्ट एट टेल। ठीक है, अब सिंस मेरे को फिर से मेरी लिंक लिस्ट में चेंजेस करने हैं, तो मैं बाय रेफरेंस फिर से हेड को पास करूंगा, और जो नई नोड इंसर्ट होगी लास्ट में उसमें कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी, राइट। उसमें कुछ वैल्यू डालूंगा इंट वैल। ठीक है, अब मेरे को नया नोड ही बनाना पड़ेगा क्योंकि इंसर्ट करनी है मेरे को। मैं बोल दिया सेम नेम, न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड, और वैल पास कर दिया। ठीक है, अब मैंने बोलता कि नया पॉइंटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, नोड, इसको बोलता हूँ टेम्प इक्वल टू हेड। अब मेरे को इस टेम्प को लास्ट इंडेक्स तक पहुंचाना पड़ेगा, तो मैं डालूंगा वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, और जब तक उसको नल नहीं मिलता तो टेम्प इंक्रीमेंट होता जाएगा, मतलब हर एक नोड में जाते जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, जब ये लूप खत्म होगा इसका मतलब होगा टेम्प का नेक्स्ट नल पॉइंट कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ये मेरा टेम्प आ गया है, तो टेम्प का ये मेरा नेक्स्ट होता है, तो टेम्प का नेक्स्ट नल पॉइंटर है, मतलब टेम्प इधर आ चुका है। ठीक है, और ये मेरी न्यू नोड है। अब मेरे को इस न्यू नोड को इससे कनेक्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस नोड को इससे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और इससे मेरा इंसर्टेड एंड हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा नोड, अब मेरा टेम्प लास्ट पॉइंटिंग टू नल। ठीक है, मतलब टेम्प मेरा लास्ट पहुंच चुका है, तो मैं क्या करूंगा, टेम्प नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इस लास्ट वाले का मतलब क्या हुआ, सिंस मेरा टेम्प यहाँ पहुंच चुका है, तो अगर मैं टेम्प का नेक्स्ट इससे कनेक्ट कर दूंगा तो ये मेरा इंसर्ट हो जाएगा ना। ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, ये नोड थे, फिर इन्हें कनेक्ट किया, इन्हें कनेक्ट किया, इन्हें कनेक्ट किया। ठीक है, ये मेरा हेड है, फिर मैंने एक बनाया टेम्प। ठीक है, टेम्प ये मेरा नल को पॉइंट कर रहा था, और ये मेरा एक न्यू नोड है। ठीक है, अब मेरे को इस टेम्प को लास्ट तक लेके जाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लूप लगाया, उसको क्या किया, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, और उसको लूप को ब्रेक कहाँ करना है, जब मेरा टेम्प इधर आ जाए और उसको दिखे कि टेम्प का नेक्स्ट नल है। ठीक है, तभी तो मेरा लास्ट नोड तक पहुंचूंगा मैं। ठीक है, और फिर मैं इस नोड को इस नोड से कनेक्ट कर दूंगा, तो ये मेरा लास्ट नोड हो जाएगा, राइट। तो यही मेरा था, टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। टेम्प मेरा यहाँ पहुंचा, तो टेम्प का अगर नेक्स्ट कर दूंगा न्यू नोड, मतलब ये और ये कनेक्ट हो जाएंगे, फिर ये नल वाला वैलिड नहीं रहेगा, इंस्टेड फिर वो नल इधर आ जाएगा लास्ट पॉइंटर। ये ऐसा ही मैंने कोड किया है। ठीक है, अब इसको एक बार प्रिंट कराते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। इसमें भी दो चीजें पास करनी पड़ेंगी, द फर्स्ट इज हेड एंड वैल्यू लेट से 99। ठीक है, और मैं इस पे डिस्प्ले करा लूंगा, डिस्प्ले हेड। ठीक है, लेट्स सी क्या प्रिंट करता है। ठीक है, तो पहला हमने ऑपरेशन क्या किया, इंसर्ट एट बिगिनिंग दैट इज टू, इंसर्ट एट बिगिनिंग दैट इज टू। फिर क्या है दूसरा ऑपरेशन, इंसर्ट एट बिगिनिंग, मतलब इंसर्ट एट हेड, थ्री, थ्री आ गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इंसर्ट एट टेल, मतलब लास्ट में 999
इंसर्ट करें तो 999 लास्ट में इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो ये मेरा था इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट एंड। अब मेरा है इंसर्ट एट एनी रैंडम पॉइंट, राइट। इंसर्ट एट एनी रैंडम पॉइंट या के पॉइंट, इंसर्ट एट के पोजीशन, इंसर्ट एट के पोजीशन, ठीक है। ये